Okay. Hello students, please let me know that whether you all can hear me properly or not. Just tell me whether you all can hear me properly or not. See, if my voice is clear, so I think now we can start definitely. Let's initiate. Where is the pen? One minute. Yes. So you see, the first question today we're gonna solve is a very important question, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि टू आइडेंटिकल बोसॉन्स आर प्लेस्ड. क्वेश्चन में बोला गया है कि टू identical bosons are placed in an infinite square well in an infinite square well full stop. They interact weakly with one another. They interact weakly with one another interact weakly with one another via the potential V of x1 comma x2 is equals to minus a v naught into del of x1 minus x2. That's all I can tell. Where v naught is a constant with the dimension of energy and a is the width of the well. V naught is what? A constant with dimension of energy and a is basically width of the well. Width of the well. अच्छा. Question number 1 में क्या पूछा गया है? Ignoring the interaction between the particles, find the ground state and first excited state, both the wave functions and the associated inputs. Ignoring the interaction between the particles, find the ground state and first excited state. Find the ground state and first excited state. Ground state and first excited state, both wave functions and associated energies. Number 2, the question says, use the first order perturbation theory to estimate the effect of the particle-particle interaction on the energies of the ground state and the first excited state. Using first order correction
find the new ground state and first excited state. ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो भाई हमें पहले ये कहा गया कि दो आइडेंटिकल बोसॉन है सर, और बेसिकली वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में मूव कर, दो आइडेंटिकल बोसॉन है और वो दो आइडेंटिकल बोसॉन क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में वो दो आइडेंटिकल बोसॉन मूव कर रहे हैं। अगर ये सिनेरियो है कि दो आइडेंटिकल बोसॉन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है, तो उनका एनर्जी क्या होगा और उनका वेव फंक्शन मतलब एनर्जी आइगन स्टेट्स क्या होगा, ये दोनों चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। We can find out the energy and the energy eigen functions for those two identical bosons. So let's find this out. देखो हमें बोला गया है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, हम लोग यूजुअली एसिमेट्रिक मानते हैं, ठीक है। we have two identical bosons in an asymmetric infinite पोटेंशियल वेल। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे है तो हम लोग ग्राउंड स्टेट कैसे निकालेंगे, तो सर बेसिकली वेव फंक्शन जो होना चाहिए दैट इज साई n1 n2 of, actually there are two particles, so basically by that way we should write, like for two particles, like if I just try to write it down, so it should be basically psi of x1 x2 I can also write, or if I'm talking about the ground state or any state suppose, so I'm talking about any state, so psi of x1 x2, and just because the particles are basically like if I say that the bosons are not interacting, I mean if they don't interact anyway, तो हम लोग लिख सकते हैं जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स हैं वो कैसे लिखेंगे, बेसिकली रूट ओवर ऑफ 2 by a साइन ऑफ n1, or n1 means I'm talking about the first particle, so basically first particle in which state, साइन ऑफ n1 by x1 by h cut root over of 2 by a sin of n2 pi x2 divided by h. That's all I can say. ये बता सकते हैं हम। अब दिक्कत ये है कि हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, मतलब कैसे उसके वेव फंक्शन, हालांकि वेव फंक्शन ऐसे नहीं होगा, वेव फंक्शन को लिखने के लिए देखना पड़ेगा कि लाइक बोसॉन है, आइडेंटिकल बोसॉन है, तो कहीं पे रिपीटेशन आ रहा है या नहीं। अगर मान लो हम लोग ग्राउंड स्टेट निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली वेव फंक्शंस तो एनर्जी आइगन स्टेट्स तो ऐसे ऐसे होते हैं ना। अगर सिंगल पार्टिकल स्टेट्स की बात करें तो ये हमारा n इक्वल्स टू 1 है, ये हमारे n इक्वल टू 2 है, ये हमारे n इक्वल टू 3 है, ये हमारे n इक्वल्स टू 4 है, ये है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के एनर्जी स्टेट्स। अगर हम लोग बोसॉन को रख रहे हैं तो दो बोसॉन सेम स्टेट में रह सकते हैं, तो ग्राउंड स्टेट कैसे मिलेगा, ग्राउंड स्टेट भाई दो बोसॉन को मैं n इक्वल्स टू 1 में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोसॉन एक साथ रह सकते हैं। तो अगर दो बोसॉन को n इक्वल्स टू 1 में रखूं तो एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, तो हमारा एनर्जी जो आएगा that is E ground unperturbed will be 1 square pi square h square by 2m square plus 1 square pi square h square by 2m square, so pi square h square divided by m square. That's all I can say. Pi square h square divided by m square. That's my ground state energy. Pi square h square divided by m square. Okay? And that's my ground state energy unperturbed. Now if I say what is the, if I say the wave function, so psi unperturbed ground state wave function for x1 x2 दो पार्टिकल क्या होना चाहिए भाई, देख इन दोनों पार्टिकल के बीच में अलग कर पाना पॉसिबल है या नहीं, बताओ। दोनों पार्टिकल सेम जगह पे रखा गया है,
तो सर अगर दो बोसॉन्स हमने सेम स्टेट पे रखे हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों के दोनों ही इसी जगह पे है। तो सिंपली हम लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 2/a साइन पाई x1 डिवाइडेड बाई a, रूट ओवर ऑफ 2/a साइन पाई x2 डिवाइडेड बाई a। दोनों के दोनों जो बोसॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में रखे, तो इसलिए एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट्स अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये अगर सिमेट्रिक है, स्पिन वाले भी सिमेट्रिक है, हम लोग स्पिन को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि जो हमारा परटर्वेशन है तुम देख सकते हो बाद का जो परटर्वेशन आएगा वो परटर्वेशन हमारा लाइक स्पेशल परटर्वेशन, तो जरूरत नहीं है स्पिन। हालांकि ये इससे ही टोटल वेव फंक्शन तुम बता सकते हो, स्पिन को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पे स्पिन अगर तुम चाहो तो डेफिनेटली लिख सकते हो कि अगर दो बोसॉन्स हैं तो और स्पिन हाउ बोसॉन्स, आई मीन दो अगर बोसॉन्स है तो डेफिनेटली इनके जो स्पिन वेव फंक्शन होगा वो स्पिन वेव फंक्शन भी सिमेट्रिक होगा, दैट यू कैन डू, लाइक दैट इज नॉट अ टफ थिंग। बट या स्पेशल से काम चला जाए क्योंकि हमारा जो परटर्वेशन है वो स्पेशल परटर्वेशन है, वो उस परटर्वेशन में स्पिन का कोई पार्ट नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होता तो स्पिन का पार्ट आ सकता था, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखो ये अगर हमारा वेव फंक्शन है तो फर्स्ट एक्साइटेड कैसे करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे करेंगे भाई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देख यहाँ पे हम लिखेंगे ई अनपर्टर्ब्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ई अनपर्टर्ब्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे करेंगे सर, एक बोसॉन को ऊपर रखो एक बोसॉन को नीचे रखो। अब कौन सा बोसॉन ऊपर है कौन सा बोसॉन नीचे है ये पता करना बहुत मुश्किल है। मैं बोल सकता हूं कि देखो भाई पहला बोसॉन नीचे है दूसरा बोसॉन ऊपर है, तुम बोल सकते हो नहीं सर दूसरा बोसॉन नीचे है पहला बोसॉन ऊपर है। अब जस्ट बिकॉज टू बोसॉन्स आर आइडेंटिकल इट मींस क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर नेसेसरीली इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, तो देयरफॉर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो दो तरीके का वेव फंक्शन यहां में लेना पड़ेगा, बट ध्यान रहे दो तरीके का वेव फंक्शन लेने के बाद उसका सिमेट्रिक कॉन्फिगरेशन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे तो ये 2/a साइन ऑफ पाई x 1/a साइन ऑफ पाई x 2/a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/a। एक बार बोसन नंबर 1 को नीचे रखूंगा बोसन नंबर 2 को ऊपर, तो साइन ऑफ पाई x 1/a साइन ऑफ 2 x 2 डिवाइडेड बाई a। सिमेट्रिक कॉन्फिगरेशन बनाने बोसन के लिए तो प्लस, फिर बोसन नंबर 1 को ऊपर रखूंगा 2 x 1 डिवाइडेड बाई a साइन ऑफ बोसन नंबर 2 को नीचे, तो पाई x2 डिवाइडेड बाई, ये है तुम्हारा wave function for first excited state. This is the wave function for first excited state. And of course, you can tell me that what will be the energy eigenvalues, what will be the energy eigenvalue that you can use. अच्छा यहाँ पे बाद में एक normalization constant भी आता है 1/√2 का, तो 1/√2 से अगर 2 को काट दूंगा तो डेफिनेटली तुम लोगों को पता चल जाएगा कि just to normalize this 1/√2 का एक normalization factor भी आएगा 1/n factorial, दो पार्टिकल्स है इसलिए, तो ये √2 से 2 काटूंगा तो √2 डिवाइडेड बाई a हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन होगा दैट इज √2 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई a इनटू दिस। तो ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा साई है, साई ऑफ साई फर्स्ट x1 x2। अच्छा अगर मैं बोलूं एनर्जी क्या होगा, एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा भाई, एक को तुमने ऊपर रखा है एक को नीचे, एक को ऊपर रखा है एक को नीचे, एक को n इक्वल्स टू 1 में एक को n इक्वल्स टू 2 में, तो सर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 5 पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। आई कैन राइट दिस। तो ये हो गया हमारे एनर्जीज और ये हमारे वेव फंक्शन हो गए। ये है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी ग्राउंड स्टेट, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी एंड वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया कि इंटरेक्शन जो है उसको इग्नोर कर दो और बाकी का पूरा काम करके मुझे बताओ कि क्या है। तो फाइन पार्ट ए हो गया है। सो दिस वाज माय पार्ट ए। सर पार्ट बी में बोला गया कि आप परटर्बेशन अप्लाई करो, परटर्बेशन अप्लाई करो और परटर्बेशन अप्लाई करके मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या सिनेरियो आ रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन अप्लाई करें क्या ये स्टेट एक में दोनों में से एक भी स्टेट डीजेनरेट है,
नहीं, दोनों के दोनों स्टेट ही हमारे नॉन डिजेनरेट स्टेट्स हैं सर, तो डेफिनेटली हम लोग नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जरा मुझे एक बात बता कि अगर नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, बड़ी अच्छी बात है। तो ग्राउंड स्टेट जो है, ई ग्राउंड का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वो क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा अनपर्टर्ड वेव फंक्शन था साई ग्राउंड का, उसको लिखो, पर्टर्बेशन को लिखो, फिर साई ग्राउंड का अनपर्टर्ड वेव फंक्शन। बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास पर्टर्बेशन बोल दिया गया है, दैट इज माइनस ए इंटू वी नॉट डेल ऑफ x1 माइनस x2, माइनस ए वी नॉट इंटू डेल ऑफ x1 माइनस x2। बड़ी अच्छी बात है, माइनस ए इंटू वी नॉट डेल ऑफ x1 माइनस x2। और यहाँ पे साइड जो है वो तो तुम्हारा साइड तुम्हें पता ही है, तो इसका मतलब साई स्टार साई आ जाएगा, तो हाउ कैन यू राइट इट, ये 2/a आ जाएगा, 2 बाई, ये तो 2/a है, तो ये 4/a स्क्वायर आ जाएगा भाई। देख रूट 2/a मतलब 2/a, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो मॉड स्क्वायर करूंगा तो 2/a स्क्वायर 4/a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन आएंगे, 4/a स्क्वायर होंगे। अच्छा, साई स्टार साई, तो दूसरी बार जब साई आएगा तो साइन स्क्वायर पाई x 1/a, साइन स्क्वायर पाई x 2/a, साइन स्क्वायर पाई x 1/a, साइन स्क्वायर पाई x 2 डिवाइडेड बाई a। पर्टर्बेशन है हमारा माइनस ए वी नॉट डेल ऑफ x1 माइनस x2, माइनस को आगे रखो, वी नॉट को यहां लिख दो, डेल ऑफ x1 माइनस x2 डी x1 dx। अब भाई इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लिमिट्स कहां पे होगा, पर्टर्बेशन कहां पे अप्लाई किया गया है सर, पूरे रीजन में पर्टर्बेशन अप्लाई किया गया है। अगर पूरे रीजन में अप्लाई किया गया है तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी जगह पे तो वेव फंक्शन जीरो है, वेव फंक्शन कहां पे नॉन जीरो है, सिर्फ 0 to a, तो 0 to a में वेव फंक्शन नॉन जीरो है, तो 0 to a में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 0 to a में लिख रहे हैं तो जरा यहाँ पे देख, ये जो हमारा डेल ऑफ x1 माइनस x2 है, ये वेल के अंदर का पॉइंट है, तो डेफिनेटली 0 to a के बीच में लाई करता है। चलो अच्छी बात। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि dx2 मौजूद है, मान लो कि सिर्फ एक इंटीग्रेशन है, वो है dx1 के रेस्पेक्ट पे जो इंटीग्रेशन, वो वाला मान ले, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन मौजूद है तेरे पास, ये वाला इंटीग्रेशन मौजूद है तेरे पास। तो भाई इस इंटीग्रेशन के लिए जरा देख, फंक्शन ऑफ x डेल ऑफ x माइनस x नॉट इंटू dx a टू b। अच्छा, अगर x नॉट a टू b के बीच में लाई करता है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आता है फंक्शन ऑफ x नॉट, और अगर x नॉट a टू b के बाहर लाई करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका वैल्यू आता है 0। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए आप, कि यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं x1 के रेस्पेक्ट, तो डेल ऑफ x1 माइनस x2 है, तो क्या करूं, ये जो x1 है हमारा वो 0 to a के बीच में ही लाई करेगा कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी पॉइंट पे, क्योंकि पार्टिकल इस वेल के अंदर है। वेरी गुड। तो सर जी यहाँ पे पहला वाला इंटीग्रेशन अगर कर लूं dx1 के रेस्पेक्ट पे, तो जहां जहां पे तुम्हें ये हमारा फंक्शन ऑफ x1 है, तो जहां जहां पे x1 दिखे वहां वहां x2 लिख दो और x2 को कांस्टेंट मान। वेरी गुड। तो माइनस 4v0 बाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x2 बाई a। अच्छा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर पाई x2 बाई a है, ये तो कांस्टेंट है x2, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x1 के रेस्पेक्ट, तो ये sin टू द पावर ऑफ 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे dx1 चला जाएगा। अब सिंपली क्या रहेगा, dx2, तो माइनस 4v0 बाई a स्क्वायर, माइनस 4v0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा है अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा a भी था, उस a से कट के ये a हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा a भी था पर्टर्बेशन में, जरा देख, ये देख पर्टर्बेशन में एक एक्स्ट्रा a भी था, तो उस a से इसका ये कट के नीचे से डिनोमिनेटर में एक a रहेगा। फाइन। तो अगर यहाँ पे एक a है, sin टू द पावर 4 पाई x2 डिवाइडेड बाय इनटू dx2। वेरी गुड। अब हम लोगों को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो भाई, पाई x2 बाई a को एक काम तू कर सकता है, वो कुछ ऐसा है
कि पाई x2 डिवाइडेड बाई जो a है तेरा, इसको तू पुट कर, जस्ट पुट इट सम वैल्यू, इसको पुट करो तुम थीटा, तो डी थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई बाई ए dx, पाई बाई ए dx2, तो dx2 क्या लिख सकता हूँ, a बाई पाई डी थीटा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा -4 v0/a, उसके साथ a बाई पाई, यहाँ पे डी थीटा लिखेंगे, यहाँ पे sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा, तो इंटीग्रेशन sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा डी थीटा। अच्छा मुझे एक बात बता, जब x2 0 था तब थीटा का वैल्यू क्या होगा, x2 थीटा, जब x2 0 था थीटा का वैल्यू 0, जब x2 a हो जाएगा थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा, तो 0 टू पाई sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा डी थीटा का आंसर आता है, तुम लोग करके देख लेना, माइन इसका जो इंटीग्रेशन है 3 पाई बाई 8, तो -4 v0 डिवाइडेड बाई a, यहाँ पे a बाई पाई इंटू 3 पाई डिवाइडेड बाई 8, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा भाई, a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 को काट देंगे 2 आ जाएगा, तो -3v0/2, -3v0 डिवाइडेड बाई, तो ये जो है ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये जो है ये हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट। तो भाई लोग जरा मुझे बताओ न्यू ग्राउंड स्टेट क्या होगा, पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय m स्क्वायर, देयरफॉर न्यू ग्राउंड स्टेट जो बनेगा, न्यू ग्राउंड स्टेट वो है ओल्ड ग्राउंड स्टेट प्लस टेलर सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो -3v0 डिवाइडेड बाय, ये हमारा न्यू ग्राउंड स्टेट। अगर यहाँ तक हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट पार्ट तो हौले हौले से हो जाएगा, वो क्या है देख भाई ध्यान से देखना है, ठीक है। पार्ट 2 जो है हमारा, सॉरी पार्ट 2 में ही जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, first order correction in first excited state, first order correction in first excited state, first order correction in first excited state। बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या हो जाएगा, तो सर सेम चीज ई फर्स्ट, हमारे यहाँ पे सर लिखना पड़ेगा अनपर्टर्ब, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वो क्या होना चाहिए सर, सर वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अनपर्टर्ब, पर्टर्बेशन वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अनपर्टर्ब, बड़ी अच्छी बात है सर। पर्टर्बेशन तो बताया -a v0 डेल ऑफ x1 - x2, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा है साई फर्स्ट, ये देख ये है, इसका अगर साई स्टार साई करेंगे भाई क्या आ जाएगा, तुझे कोई आइडिया है, इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2/a स्क्वायर होगा। अच्छा फाइन, तो लिखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको भाई, -a v0 को पहले से ही बाहर रख रहा हूं, देखिए यहाँ पे साई 1 स्टार साई 1 ही हो जाएगा ना बेसिकली, साई जो फर्स्ट एक्साइटेड तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 2/a स्क्वायर तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पे भी 2/a स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, फिर डबल इंटीग्रेशन चढ़ेगा सर डेफिनेटली, कहां से कहां तक करोगे सर इंटीग्रेशन, x1 = 0 to a, x2 = 0 to a, दोनों ही पार्टिकल सेम वेल में है, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे देख ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका स्क्वायर, तो sin of πx1/a sin of 2πx2/a, तो सर sin of πx1/a sin of 2πx2 divided by a plus symmetric wave function sin of 2πx1 divided by a sin of πx2 डिवाइडेड बाई करके ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है भाई, डेल ऑफ x1 - x2 into dx1 dx2, भाई भूल जा कि यहाँ पे dx2 है, मान ली कि सिर्फ dx1 के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x2 जो है x2 हमारा कांस्टेंट, अब x1 तो भाई इस वेल के अंदर का कोई भी पॉइंट हो सकता है जो 0 to a के बीच में लाई करता है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर तेरे को पता है -2a v0 लिख देता हूँ, एक a से a को काट तो नीचे a रहेगा, ऊपर में 2v0/a, तो देख 2v0 डिवाइडेड बाई a लिख सकता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to a
ये क्या होगा भाई बोल, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से चिंता करके बता। सर x1 जहां जहां पे है, डेल ऑफ x1 माइनस x2 है, तो जहां जहां x1 है वहां वहां x2 पुट कर दो। x2 तो हमारा कांस्टेंट, तो साइन ऑफ, क्योंकि हमने अभी सिर्फ x1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, सो आई कैन राइट साइन ऑफ, यहाँ पे x2 कर दूंगा तो साइन ऑफ पाई x2 बाई ए, साइन ऑफ 2 पाई x2 बाई ए, यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई x2 बाई ए, साइन ऑफ पाई x2 बाई ए, तो वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं पाई x2 बाई ए, फिर साइन स्क्वायर 2 पाई x2 बाई ए इंटू dx2। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? साइन स्क्वायर पाई x2 बाई ए इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई x2 बाई ए इंटू dx2, 0 टू a में इंटीग्रेशन। अब तो प्रॉब्लम कोई मतलब कोई भी कर देगा। अब तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया कि पाई x2 बाई a को, सर सबको पता है कि इस चीज को क्या लेना है, थीटा, तो वेरी गुड। So that's why we know that a by pi into d theta is equals to my dx2। दूसरी बात, सर जब थीटा और x के बीच x2 के बीच में हम काम कर रहे हैं, तो जब हमारा x2 क्या था 0, देख तो भाई x2 और थीटा के बीच में जब काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए x2, हाँ ठीक है। जब x2 और थीटा, तो x2 जब हमारा देख 0 है और a है, तो x2 जब 0 है और a है, x2 0 होगा तो थीटा 0, x2 a होगा तो थीटा 0 था। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई में हो जाएगा। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये इंटीग्रेशन तेरा बन जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा। देखो बाहर क्या आएगा, a बाई पाई, बाहर अगर a बाई पाई आ रहा है तो a कैंसिल, माइनस 2 v नॉट डिवाइडेड बाई पाई। देख ले यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा, दैट्स ऑल आई कैन राइट। अब इसका कुछ आसान सा तरीका आ सकता है तो बोल तू, कुछ भी अगर आसान सा तरीका तेरे को लगे कि हाँ सर ये तरीका सही है, तो मेरे को बता सकता है। साइन स्क्वायर 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं, बट उससे ज्यादा मजा नहीं आएगा एक्चुअली। एक तो साइन स्क्वायर 4 हो जाएगा, वहां पे cos, वहां पे मुश्किल में पड़ जाएगा, cos स्क्वायर हमारे जाएगा, दैट्स व्हाई cos थीटा होता तो होता। इसको ऐसे कर सकते हैं देख, इसको ना लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा को लिख रहे हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा तेरा 4, अगर आ जाएगा तो माइनस 8 v नॉट बाई पाई 0 टू a साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देख cos स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा डी थीटा। ये इधर आ जाएगा माइनस 8 v नॉट डिवाइडेड बाई a इंटीग्रेशन साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा डी थीटा 0 टू a। भाई मुझे एक बात बता, एक सिंपल सा बात तो मुझे आज बता ही दे, वो ये है कि साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू a नहीं होगा, 0 टू पाई होगा। यहाँ पे हमने लिमिट चेंज किया है 0 टू पाई, इट विल बी 0 टू पाई, पाई पाई, यहाँ पे भी लिखो पाई, तो 0 टू पाई साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा डी थीटा क्या आता है भाई, 3 पाई बाई 8, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा डी थीटा कितना आता है दोस्तों, 5 पाई बाई 16। ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इससे अगर करो तो आ जाएगा माइनस 8 वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई, ये पाई होना चाहिए, डिवाइडेड बाई पाई, माइनस 8 वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 माइनस 5 पाई बाई
3 pi by 8 minus 5 pi by 16 minus 2 v naught. यही आ रहा है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 6 minus 5 is equals to 1, तो पाई डिवाइडेड बाय 16, पाई पाई कैंसिल, 8 से करोगे तो minus 2 v naught हो जाएगा। अच्छा हैंग ऑन, यहाँ पे एक जो 4 था वो 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा। 2 v naught कैसे आ रहा है, v naught by 2 आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 ऑलरेडी था, ठीक है। सो जैसे हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन किया, उसके बाद ये चेंज होना चाहिए था ना। सी जैसे हमने इसको ऐड कर, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, तो ये था साइन पाई एक्स टू बाई ए साइन 2 पाई एक्स टू बाई ए प्लस साइन 2 पाई एक्स टू बाई ए साइन पाई स्क्वायर, तो ऐड करके 2 आएगा। 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू यहाँ का 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फिर से, तो जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे a बाई पाई बाई ए बाई पाई यहाँ से कैंसिल, तो 8 v नॉट बाई होना चाहिए, 8 v नॉट बाई 8। अब जैसे यहाँ पे साइन की तरह को तोड़ रहा हूँ, तो 2 से अंदर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मींस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। उसके बाद देखो, तो फिर यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32, इट इज 32 माइनस 32 v नॉट माइनस 32 v नॉट माइनस 32 v नॉट। 16 से 32 कटूंगा तो 2 minus 2 v naught of it. Therefore, I can say my first order correction. So therefore, E first excited state new क्या है, E first excited state unperturbed मतलब old plus the first term of Taylor series expansion minus 2 v naught. That's all. ये हमारे आ रहे। बताओ अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन ऑलवेज आस्क। बताओ भाई, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तेरे मन में तो मुझसे पूछा कर, पूछो बेटा। If you have any doubt in your mind, you can always ask me. बताओ, any questions? ओके यहाँ पे एक दूसरा सवाल है, हम लोग थोड़ा सा इस सवाल को देख सकते हैं। देखिए सवाल में बोला गया है कि फाइंड द एग्जैक्ट एनर्जीज एंड वेव फंक्शंस ऑफ द ग्राउंड एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर डीजेनेरेसीज फॉर द इनफाइनाइट क्यूबिक पोटेंशियल वेल। वेरी गुड, क्यूबिक पोटेंशियल वेल में हमने वो करा है जो 0 है फॉर x greater than 0 less than l, y is greater than 0 less than l, z is greater than 0 less than l, and infinity otherwise. Now at the following perturbation, okay fine। तो हम लोग पहले तो जो पूछा गया है वो करते हैं, उसके बाद बात की बातें करें। पहले जो जो हमसे पूछा जाता है उसके आंसर देते हैं। पहले हमें क्या कहा गया है, क्यूबिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, क्यूबिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, कोई पर्टर्बेशन नहीं है, तो हमारा जो साई होगा इन एक्स इन वाई इन जेड ऑफ एक्स वाई जेड, वो क्या होगा भाई, रूट ओवर ऑफ 2 बाई, यहाँ पे एक्चुअली इसका लेंथ क्या बोला गया है, 0 to l 0 to l 0, तीनों का ही सेम है, तो रूट ओवर ऑफ 2 बाई एल, रूट ओवर ऑफ 2 बाई एल, रूट ओवर ऑफ 2 बाई एल, तो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई एल क्यूब साइन, क्या लिखेंगे, इन एक्स पाई एक्स बाई एल साइन ny pi y by l sin
इन जेड पाई जेड बाई एल। ये तीन चीज हम लोगों ने लिख लिया, ये तीन चीज हम लोगों ने लिख लिया है। अगर हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है तो इसके बाद हमारा काम क्या बचा है? सर एनर्जी स्टेट के बारे में बता दूं तो ई का जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी स्टेट है nx ny nz वो क्या होना चाहिए? I square h square divided by 2m l square nx square plus ny square plus nz square. I can write it like this. ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब उन लोगों ने सबसे पहला प्रश्न, अच्छा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का वो पूछा है शायद, है ना? Ground and first excited states and specify the, okay, okay, find the exact variable for the ground state and first excited states. Okay, first excited state और ground state के लिए पूछा गया। तो भाई हमारा ये अगर हमारा एनर्जी स्टेट है, ये है nx ny nz के वैल्यूज, और वहां से हमारा स्टेट क्या आ रहा है? E, वहां से ये हमारा स्टेट और डीजनरेशन। तो खुद देखो, अगर nx ny nz तीनों 1 1 1 हुआ तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है? दैट विल बी 3 pi square h square by 2ml square। स्टेट है ग्राउंड, डीजेनरेसी है 1, मतलब नॉन डीजेनरेट। अगर इसको फर्स्ट एक्सप्लेन करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 1 2 1 1 तो 1 1 2। इन तीनों के लिए क्या आ जाएगा एनर्जी हमारा? 4 + 1 5 + 1 6 pi square square by 2ml square। I can write 6 pi square h square divided by 2ml square। बड़ी अच्छी बात है सर। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, डीजेनरेसी है 3। अब भाई लोग जरा यहाँ पे देखिए, थोड़ा गौर फरमाइए। बोला गया है फाइंड यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। अगर हम लोगों ने ये परटर्बेशन लगा दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से न्यू ग्राउंड स्टेट पूछने के लिए बोला है। v नॉट l क्यूब डेल ऑफ x माइनस l by 4 y माइनस दिस फाइन। तो ग्राउंड स्टेट तो नॉन डिजेनरेट है, तो ये इसको तो लेके ज्यादा एकदम बिल्कुल टेंशन मत कर। नॉन डिजेनरेट चीजों को लेके बिल्कुल सोचना। यहाँ पे देख, नॉन डिजेनरेट है किसके लिए? ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है सर 1 1 1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा हमारा साई 1 1 1 अनपर्टर्ब्ड एचपी साई 1 1 1 अनपर्टर्ब्ड। ये रहा। अब भाई जरा यहाँ पे देखिए, ये क्या आ जाएगा? एचपी का वैल्यू पता है, साई 1 1 1 साई 1 1 1 पता है। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल इंटीग्रेशन होगा, तो साइन स्क्वायर इन पाई एक्स बाई एल, साइन स्क्वायर पाई वाई बाई एल, साइन स्क्वायर पाई जेड बाई एल, यहाँ पे 8 बाई एल क्यूब, 8 बाई एल क्यूब साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल, साइन स्क्वायर पाई वाई बाई एल इंटू साइन स्क्वायर पाई जेड बाई एल, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल, साइन स्क्वायर पाई वाई बाई एल, साइन स्क्वायर पाई जेड बाई एल। That's all I can do। और इसके साथ जो हमारा परटर्बेशन है वो क्या है? v नॉट l क्यूब, ओके, v नॉट l क्यूब है, फिर डेल ऑफ x माइनस l by 4 y माइनस 3l by 4, फाइन। इसके साथ है हमारा v नॉट l क्यूब डेल ऑफ x माइनस l by 4 डेल ऑफ x माइनस, I can say 3l by, sorry, x नहीं y, y minus 3l by 4 del of z minus l by 4, then dx dy dz। और यहाँ पे तीन इंटीग्रेशन होंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होंगे? सारे ही हमारा शायद 0 to l तक फैला हुआ है, तो 0 to l 0 to l 0 to l। परटर्बेशन भी उन लोगों ने 0 to l के बीच में ही दिया, मतलब क्यूब के अंदर ही दिया। तो फाइन।
अब देखिए जो इंटीग्रेशन है ये तीन इंटीग्रेशन तीन अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएंगे। एक तो वी नॉट एल क्यूब से एल क्यूब काट दो, 8 वी नॉट को बाहर ले लो। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल डेल ऑफ एक्स माइनस एल बाई 4 dx साइन स्क्वायर पाई वाई बाई एल एक्स माइनस वाई माइनस 3l बाई 4 dy साइन स्क्वायर पाई z बाई एल डेल ऑफ z माइनस l बाई 4 dz सारे 0 to a, 0 to a नहीं 0 to l, सारे के सारे 0 to l 0 to l 0 to l। भाई इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 8 v नॉट। अच्छा यहाँ पे l बाई 4 0 to l के बीच में है, l बाई 3 l बाई 4 0 to l के बीच में है, l बाई 4 0 to l के बीच में, तो तुम्हें पता है जस्ट यहाँ पे x की जगह पे l बाई 4 पुट कर दो तो sin पाई बाई 4। अच्छा sin पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? sin पाई बाई 4 मतलब sin 45 1 बाई रूट 1 बाई रूट का स्क्वायर मींस हाफ, तो पहला वाला आ रहा है हाफ। दूसरा वाला बताओ 3l बाई 4 पुट कर दो यहाँ पे y की जगह पे, l कैंसिल, सो sin 3 पाई बाई 4, sin 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है? sin 3 पाई बाई 4 पाई बाई 45, तो 3 into 45 जो भी है साइन ऑफ द आंसर 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर फिर से हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी साइन ऑफ l बाई 4 ये हाफ आ जाएगा। तो ये देखो 2 into 2 into 2, तो ये कट के हमारा v नॉट आ रहा है यहाँ से, तो v नॉट है हमारा करेक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो जरा मुझे बताना कि जो न्यू तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी माय ओल्ड ग्राउंड स्टेट अनपर्टर्ब प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है हमारा v नॉट, ये है। बट यहाँ पे तो मुश्किल में पड़ सकता है अगर तुमसे पूछ लिया फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालो, क्योंकि देख फास्ट एक्साइटेड स्टेट डिजेनरेट स्टेट, तो वहां पे डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करने के अलावा यू हैव नो अदर ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर तुम यूज कर रहे हो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बट सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिजेनरेट स्टेट है तो डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करना पड़ेगा। तो एक स्टेट है 1 2 1, एक है 2 1 1, एक है 1 1 2, तो आई कैन राइट यहाँ पे तुम स्टेट के नाम लिख सकते हो सर। सो द अनपर्टर्ब्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या क्या है सर? एक तो हम लोग कर सकते हैं सर साई 211, मतलब nx2 है, ny और nz 1, जिसको लिए हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 8 बाई एल क्यूब साइन 2 पाई एक्स बाई एल साइन पाई वाई बाई एल साइन पाई जेड बाई एल। सिमिलरली देख इसको लिखेंगे 8 बाई एल क्यूब साइन साई 1 to 1, इसके लिए लिखेंगे पाई एक्स बाई एल साइन 2 पाई वाई बाई एल साइन पाई जेड बाई एल, और साई 1 1 2 इसके लिए लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 8 बाई एल क्यूब साइन पाई एक्स बाई एल साइन पाई वाई बाई एल साइन 2 पाई जेड बाई एल। ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टेट 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टेट 2, इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टेट 3। अच्छा यहाँ पे तीन स्टेट्स हैं करस्पॉन्डिंग टू द सेम एनर्जी लेवल, थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द सेम एनर्जी लेवल। वेरी गुड। तो यहाँ पे डिजिटल स्टेट 3 है सेम एनर्जी के लिए। तो अगर हम लोग सेक्युलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो कितना हो, कितना बाई कितना सेक्युलर मैट्रिक्स होगा? 3 बाई 3 होगा। सो सेक्युलर मैट्रिक्स होगा कितना? 1 HP1 1 HP2 1 HP3।
फिर सेकेंड रो तो 2HP1 3HP1, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 3HP2 HP2, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 2 3HP3 HP3। तो भाई ये जो चीज आ जाएगा हमारा, ये हमारा सेक्युलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के वैल्यू को तो कैसे लिखेगा, ये हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एक एक इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन तुम लोग खुद से सॉल्व, बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, तो प्लीज मुझे मत बोलिए इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है, एक एक करके सॉल्व करना मेरे लिए बहुत टायरसम और बहुत टाइम भी लगेगा। हालांकि तुम लोग देख सकते हो ये 1 HP, ये तो तुम लोग एकदम से कर ही सकते हो, मतलब ये 1 मतलब ये जो 1 मतलब ये है इसका है, तो इसका स्क्वायर कर देना, करके जो पार्टिशन है उसको लिख के इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है तो तुम्हें पता ही कैसे करना है। तो ये करके देखना कि ये जो सेकुलर मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 और 1 -1 1 -1, ये आ जाएगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा 2V0। तो भाई ये हमारा सेकुलर मैट्रिक्स है और हम लोगों को पता है कि सेकुलर मैट्रिक्स के करेक्शंस ही फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस होते हैं। सेकुलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज है वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस हैं। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, लैम्डा इक्वल टू 0 0 एंड 6V0 6V0 are eigenvalues of the secular matrix and therefore are first order correction of first एक्सेप्ट स्टेट। तो पहले जो फर्स्ट एक्सेप्ट स्टेट था मेरा, अब फर्स्ट एक्सेप्ट स्टेट क्या बन जाएगा बता, इनिशियल फर्स्ट एक्सेप्ट स्टेट जो पहले था अनपार्टन प्लस 0, इनिशियल फर्स्ट एक्सेप्ट स्टेट प्लस 0, इनिशियल फर्स्ट एक्सेप्ट स्टेट प्लस 6V0। तो सर पहले जो लेवल मेरा 3 लेवल एक साथ ही था, सेम एनर्जी में था, अब वो 3 लेवल में से सर एक लेवल ऐसा है और एक लेवल ऐसा है। तो ये जो 6V0 वाला है ये है E0 फर्स्ट प्लस 6V0, ये है सिंगली डिजेनरेट मतलब नॉन डिजेनरेट, बट E0 फर्स्ट प्लस ये जो है तेरा, ये वाला जो तेरा यही है, इसका तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ये वाला यही है E0 फर्स्ट, ये डबल डिजेनरेट, ये डबल डिजेनरेट है, तो ये है तुम्हारा E0। तो सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो था वो पहले ट्रिपली डिजेनरेट था, बट उसके जैसे हमने ये इंटरैक्शन डाला, परटर्बेशन डाला, उसकी वजह से क्या हुआ कि सर इसका डिजेनरेसी ब्रेक हुआ, एक स्टेट का एनर्जी अलग हो गया, बाकी दो स्टेट का एनर्जी अभी भी सेम है, तो डिजेनरेसी लिफ्टेड बाय 1, पहले डिजेनरेसी 3 था, अभी डिजेनरेसी 2 है, तो डिजेनरेसी लिफ्टेड बाय 1। आई होप कोई दिक्कतें नहीं है, अगर सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछा कीजिए। If there is any question you want to ask, you can definitely ask. Otherwise, I am signing off. Tell me if you have any question. बताओ बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारे मन में बता दो, कोई भी क्वेश्चन हो बताओ। ठीक है, if you don't have any questions, I can say thank you.